Hello students and welcome to eTutions, Education for Better Tomorrow. I am Devashmita and I am here to teach you English. So today we will read the chapter number 1, the best Christmas gift part 3. ठीक है. So as it is part 3, इसके previous 2 parts है. So to know the complete chapter you must watch the previous videos. So go subscribe to the channel so that you can know what has happened previously. Okay, and in today's video we will know कि उस पहले वाले चैप्टर्स में जो सब हो चुका था, अब नेक्स्ट हमारे इस चैप्टर में क्या होने वाला है. So let's start the video. Okay, I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning I knew what I had to do. I drove into Bridgeport. Okay? So यहाँ पे हमने प्रीवियस जो वीडियोस हैं वहाँ पे आपने देखा था कि नरेटर जो है वो एक राउंड टेबल टॉप लेके आते हैं कबाड़ खाने से, एंड उसके बाद while repairing he found a letter, and after finding that letter he found some secret door in which there was an envelope and he reads out the envelope. Okay, and उस envelope में वर्ल्ड वॉर टाइम का सब इंसिडेंट्स लिखा हुआ था. Jim has written to Connie his wife about that वर्ल्ड वॉर टाइम. ओके, कि कैसे वर्ल्ड वॉर के बीच में दोनों एनिमी कंट्रीज के आर्मीज के बीच फ्रेंडशिप हो रहा था. ओके, अच्छा. So now after reading all those detailed incidents, okay, the narrator has just folded the letter back and उसको उसके envelope में डाल दिया. I kept awake all night. By morning I knew what I had to do. ठीक है. अब ये सब जो करने के बाद वो पूरे रात सो नहीं पाया. He was continuously thinking about those इंसिडेंट्स की, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये लेटर किसका है, कैसे पहुंचेगा, क्या करना है. He was thinking all over the night. By morning I knew what I had to do. And सुबह तक उसको पता था कि उसको क्या करना है. I drove into Bridgeport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Bridges was. ठीक है. तो अब वो जाके ब्रिडपोर्ट में पहुंच जाता है नरेटर. ठीक है. एंड नाउ ही आस्क्ड अ रैंडम स्ट्रेंजर बॉय, ठीक है, जो अपने कुत्ते को वॉक करवा रहा था, कि ये कॉपर ब्रिजेस कहाँ है. हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट सेल. अब वो कॉपर ब्रिजेस पहुंच के हाउस नंबर 12 ढूंढने निकलता है. अब हाउस नंबर 12 तो उसको मिल गया, मगर हाउस नंबर 12 क्या निकला? इट्स जस्ट अ बर्न्ड आउट सेल. ठीक है, वो घर पूरा का पूरा जला हुआ था. ठीक है, सो इट वाज बर्न्ड. और अगर आप प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा तो यहाँ पे आपको याद होगा कि उस टेबल के टॉप में पानी और आग के दाग थे. देयर वर स्टेन्स ऑफ फायर एंड वाटर. So now you got it. Where did those burned out stains came from? Okay, अच्छा. The roof gapping, the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew that whereabout of a Mrs. McPherson. ठीक है. तो अब जब ये घर जला हुआ है तो उस जले हुए घर के बारे में कौन बता सकता है? पड़ोसी. So now he knocked the neighboring door. ठीक है. And he asked that where is Mrs. McPherson? कहाँ है वो? Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well. And now McPherson को वो जो neighboring लोग बहुत अच्छे से जानते थे. And now that man in the slippers, मतलब उसके जो स्लीपर मतलब जो स्लीपर जूते होते हैं कि लाइक हम लोग घर पे बेसिकली वही यूज करते हैं. सो इन हिज स्लीपर्स ही वाज टेलिंग कि यस ही न्यू मिसेस मैकफॉर्सन वेरी वेल.
उनको पता था कि मिसेस मैकफॉर्सन कौन थे। अच्छा, ए लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, एंड उसने कहा कि मिसेस मैकफॉर्सन वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एंड अ लवली लेडी। ठीक है। अच्छा, a muddle headed but at her age she was entitled to be, wasn't she? अब मिसेस मैकफॉर्सन बहुत बूढ़ी हो गई थी। सो ही वॉज अ मडल हेड। मडल हेडेड मीन्स कंफ्यूज, जो भुलक्कड़ होते हैं, कंफ्यूज, सो दैट इज योर मडल हेडेड। ओके, एंड उनकी एज में दैट इज वेरी नॉर्मल। ठीक है, जो बूढ़े लोग होते हैं दे जनरली फॉरगेट थिंग्स, they generally confuse things, उनको भ्रम होता रहता है, so this is normal, quite normal, right? अच्छा, 101 years old, and now that man says that Mrs. Macpherson was 101 years old, 101 साल की है, मतलब सेंचुरी पीट दी है। ओके, अच्छा, she had been in the house when it caught fire. No one really know how the fire had started, but it could be well have been candles. ठीक है, अब किसी को पता नहीं था कि तो देख रहे हो ना, आग लगा है घर पे। So how did this fire caught? Nobody knows. किसी को कोई आइडिया नहीं है कि घर पे आग कैसे लगी, but probably या फिर possibly कैंडल से ये आग लगी है। ओके, अच्छा, she used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now. Okay, so now they are telling कि मतलब आग लग गया घर पे कैंडल की वजह से perhaps. एंड क्योंकि वो ना ज़्यादातर घर पे कैंडल्स यूज़ करती थी जो टू एनलाइटन हर हाउस। ओके, because she thought that electricity was too expensive, बहुत दाम है, and she can't afford. ठीक है, the fireman had got her out in time, and जब घर पे आग लगी तो सही टाइम पे फायरमैन ने उसको बाहर निकाल दिया एंड उसकी जान बचा ली। ओके, she was in a nursing home now. He told me Bullingdon House on the Dorchester Road on the other side of the town, and now that man in the sleepers gave the narrator the address of the nursing home जहाँ पे मिसेस मैकफॉर्सन थी, उनका इलाज चल रहा था। ओके, अच्छा, I found Bullingdon House nursing home easily enough. There was paper shins up in hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on the top. ठीक है, so यहाँ पे he founded the nursing home, and now he is visiting that nursing home and he finds that there was मतलब डेकोरेट हुआ है, पूरा कॉरिडोर डेकोरेट हुआ है। दिस इज अ क्रिश्चियन प्रोन एरिया, मतलब उनका जो जर्मन है या फिर जो ब्रिटपॉट है दैट इज अ क्रिश्चियनिटी रिलीजन का कंट्री है। ओके, सो वहाँ पे क्रिसमस इज अ वेरी बिग इवेंट। सो वहाँ पे जगह जगह पे आपके क्रिसमस ट्रीज होता है, डेकोरेशन होता है। सो क्रिसमस ईव में आप बेसिकली अगर चर्च में विजिट करते हो सो दैट होल कंप्लीट चर्च इज डेकोरेटेड, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे भी क्रिसमस ईव था एंड टोटल कंप्लीट कॉरिडोर, टोटल मतलब आपका क्रिसमस ट्री सब डेकोरेटेड थे। ओके, I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. ठीक है, आप उसका जब इंट्रोड्यूस पूछा गया कि भाई कौन हो, क्यों मिलना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं मिसेस मैकफॉर्सन का एक दोस्त हूँ जो उसके लिए क्रिसमस के लिए प्रेजेंट लाया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing paper hat and singing. And dining hall में ना और भी जो सारे इलाज हो रहे थे वो सब पेपर हैट पहन के सिंग कर रहे थे, गाना गा रहे थे। ओके, द मैट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। मैट्रॉन मतलब जो केयर टेकर होता है, जो गाइड होता है वो। ओके, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम। नरेटर को देख के वो बड़ा खुश थी। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। ओके,
and that matron has offered the narrator a mince pie. She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with the others, she told me. तो अभी वहाँ पे डाइनिंग हॉल में सभी गाना गा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मगर वहाँ पे मिसेस मैकफॉर्सन थी नहीं. She rather was confused today, so we thought it best if she had a good rest. ठीक है, तो एज ऑलवेज बूढ़ी हो रही है, डिप्रेस्ड है, घर जल गया है, सो बहुत कुछ वो सफ़र कर रही है. सो शी वॉज नॉट इन अ गुड मूड. सो उनको रेस्ट लेने के लिए आज उनके रूम पे अकेले छोड़ दिया गया. ओके, अच्छा. सी हैज़ नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स. अब मिसेस मैकफॉर्सन का कोई फैमिली था नहीं, एंड उसको कोई विजिट भी नहीं करता था. अच्छा. सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू. एंड मिसेस मैकफॉर्सन अभी नैरेटर को देख के बहुत खुश हो जाएंगी, बिकॉज अगर आपके साथ मतलब होता है ना कि बूढ़ी औरतों के साथ अगर आप मिलने जाओ, जुलने जाओ, तो लाइक दे बिकम वेरी हैप्पी कि यस समबडी हैज केम टू विजिट अस. सो सिमिलर, ठीक है. She took me into the conservatory with the biggest chairs and potted plants all around and left me. And अभी जो मेट्रॉन थी वो नरेटर को मिसेस मैकफॉर्सन के रूम में लेके जाती है. ओके. The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. She was gazing out at the garden. तो यहाँ पे मैट्रॉन लेके आती है मिसेस मैकफॉर्सन के रूम में, एंड मैकफॉर्सन के रूम में दिखती है कि एक ओल्ड लेडी अपने व्हीलचेयर में बैठा है, जैसे कि पिक्चर में देखा है. तो बैठी है, उसके हाथ ऐसे फोल्डेड है, उसके बाल पूरा पके ग्रे कलर के, एंड वो वाला बाल ऐसे बन के शेप में बंधा हुआ है. एंड मिसेस मैकफॉर्सन वाज looking at the garden. अच्छा. Hello, I said. She turned and looked up at me vacantly. Happy Christmas, Connie. I went on. I found this. I think it's yours. अब नैरेटर आके बोलता है कि हेलो. जैसे कि हम लोग किसी को विजिट करने जाते हैं तो पहले हम लोग बोलते हैं हेलो. और यहाँ पे नैरेटर को मिसेस मैकफॉर्सन पहचानती नहीं थी. सो वो क्या कि वैकेंटली देखने लगी. वैकेंटली देखने का मतलब है कंफ्यूजन में देखना. सो कंफ्यूजन में उसको देखने लगी. हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस. ठीक है. एंड उसके बाद नरेटर कंटिन्यूअसली उसको मतलब बोले जाता है. क्या बोलता है कि मेरे को ये चीज़ मिला. लेटर दिखाते हुए बोलता है कि मेरे को ये चीज़ मिला एंड आई थिंक इट इज़ योर्स. एंड मुझे लगता है कि ये लेटर आपका है. As I was speaking, her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition. ठीक है. तो जब से नैरेटर बक कर रहा था तब कंटिन्यूअसली मिसेस मैकफॉर्सन उसके चेहरे को देख रही थी, मतलब रिकॉग्नाइज करने के लिए कोशिश कर रही थी. बट आफ्टर दैट व्हेन नरेटर वो टीन का डब्बा खोल के उसका लेटर दे देती है, तब वो पहचानती है कि अरे ये लेटर तो मेरा है. ठीक है. वो पूरा सरप्राइज होके बहुत खुश हो जाती है. ओके. अच्छा. आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द टेस्ट बट हाउ आई फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग. अब ये नरेटर पूरा कहानी बता रहा है कि उसको कैसा मिला, वो कैसे पढ़ा, क्या किया, क्या नहीं किया, सब बता रहा है, मगर मिसेस मैकफॉर्सन थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही हो कि वो क्या बोल रहा है. अच्छा. For a while she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. जब कोई चीज़ आपको बहुत प्यारा होता है ना, आप उसको ऐसे संवारते हो, सहलाते हो, ठीक है, उसको पैम्पर करते रहते हो. तो सिमिलरली दिस लेटर वाज वेरी प्रेशियस फॉर मिसेस मैकफॉर्सन. ठीक है. एंड शी वॉज कंटिन्यूअसली रबिंग हर हैंड्स अराउंड द लेटर कि वाह मेरा लेटर, मेरा प्यारा सा लेटर. ओके. Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. You told me you would come home by Christmas, dearest. ठीक है. तो अब उसकी आंखों में बहुत सारा पानी, मिसेस मैकफॉर्सन की आंखों में बहुत सारा पानी, बिकॉज शी वॉज इमोशनल विद दैट लेटर. ठीक है.
एंड वो बोल रही है कि जिम तुम आओगे, तुम बोले थे कि तुम क्रिसमस में आओगे, तुमने मेरे को कहा था। जैसे कि वो होता है ना, बॉलीवुड का वो मूवी देखा है ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे। सो नॉट लाइक दैट बट स्टिल उसी टाइप का कुछ कि हाँ तुमने कहा था तुम आओगे क्रिसमस में, एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, ओके। एंड नाउ मिसेस मैकफर्सन इज इमोशनल, शी इज लविंग, शी इज लाइक ओके अभी आप आओ मेरे पास बैठो। अच्छा। I sat down beside her and she kissed my cheek, ठीक है। एंड जब वो नरेटर जाके मिसेस मैकफर्सन के पास बैठता है तो मिसेस मैकफर्सन क्या करती है कि उसको उसके चिक्स पे किस करती है। अच्छा। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम, एवरी डे आई वांटेड टू हियर योर वॉइस इन माय हेड, इट ऑलवेज मेड मी फील यू आर विद मी, ठीक है। वो लेटर मतलब वो बोल रही कि मैं हर दिन ये लेटर तुम्हारा पढ़ती थी, एंड मैं ना सुनना चाहती थी, तुम्हारा वो वॉइस जो है ना वो अपने कानों से सुनना चाहती थी। आई रियली फेल्ट लाइक यू आर विथ मी, ओके। एंड नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ। अब जब तुम मेरे पास आ ही गए हो तो प्लीज मेरे को खुद ही पढ़ के सुनाओ ये सब, ओके। अच्छा। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर? अब ये मिसेस मैकफर्सन बोलती है कि जिम क्या तुम ये मेरे लिए करोगे? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, एंड मुझे फिर से तुम्हारा वो वॉइस सुनना है। आई वुड लव दैट सो मच। एंड नाउ द नरेटर इज स्पीकिंग दैट मैं ये आई वुड लव डूइंग दैट, मतलब मेरे को बहुत खुशी होगी ये करते हुए। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मर्सीपैन ऑल अराउंड, आई नो हाउ मच यू लव मर्सीपैन, ठीक है। सो यहाँ पे नरेटर बोलता है कि ठीक है मैं जब तुमको पढ़ के ये लेटर सुना दूंगा उसके बाद हम थोड़ा सा चाय पियेंगे, एंड उसके बाद मैं आपके लिए क्रिसमस केक बना के लाया हूँ मर्सीपैन, ठीक है। एंड आई नो हाउ मच यू लव मर्सीपैन, ठीक है। यहाँ पे नरेटर बोलता है कि मुझे पता है कि आपको मर्सीपैन बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आपके लिए बना के लाया हूँ, ओके। सो हियर इज द एंड ऑफ द चैप्टर, ओके। सो हमारे पार्ट 3 में ये कंप्लीट स्टोरी खत्म हो जाता है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज यह हमारा पार्ट 3 था एंड उसके प्रीवियस भी 2 वीडियोस बन चुके हैं। सो टू नो द कंप्लीट स्टोरी do subscribe to the channel, and do not forget to download the eTutions application from the Play Store, because we provide quality education for CBSE and BSc. Thank you.